Hello everyone, welcome to the channel. I hope that everyone is fine and in good health. Today we'll be covering a very important topic, that is software testing. Many of you are aware about this, some of you have a little bit of knowledge, and some of you are just completely new to this topic. Okay, so don't worry, we'll be covering this topic very nicely, and I'll make sure that you are able to understand the theory behind the topic. Okay, so basically software testing it is a theoretical topic. It has some numericals, but we cannot say that it is a completely numerical based topic, right? So uh, so we basically what I have thought is that we'll be starting with few topics. We'll take few topics and we'll try to complete those topics. Okay, I'll try to make you understand those topics completely. So it will be a long session. I just want everyone to pay attention to this. Okay, and if you have any doubt, you can always ask the doubts in the comment section, or you can ask the doubts on the telegram group, that is the t.me/net real digimento. Okay, so this is a telegram group, everyone. You can join this telegram group, and in these videos, in the upcoming videos, or in any of the video, if you have any question, feel free to ask on these, okay, on this platform. Okay, this is the mail address, admin@gatelectures.com. So if you have any question related to course and all, you can also mail on this particular email id. And these are the phone numbers: 9821876104 or 9821876102. If you have any query, you can either call or WhatsApp on these two numbers as well. Okay, so this is the basic website, that is digimento.com. You can visit this website and you can see that there are certain live classes, there are test series, there are downloads option available, plus there are other courses as well for your RRB. Okay, machine learning, for ISRO, for GATE as well we have courses. Okay, so you can visit this website, everyone, and then you can have a look कि कौन सी वेबसाइट कौन सा कोर्स आपके लिए feasible है, 6 months, 12 months, 3 months. And then you can use this code welcome 40 to get 40% off. Okay, this is the Android app, as everyone knows. So all the Android users can install this app from Play Store and can access all the content that is available on website from this particular app as well. Okay, so I hope everything is clear to everyone. So let's start with the topic. So as you can see that this is the syllabus of your software testing. Okay, I'm not talking about software engineering. It is the topic we'll only focus on one topic. Okay, so today we'll be discussing on software testing. So what all we have in software testing, let us see. Because lately testing has become a very important topic. Yes, you all will feel that the software testing has gained a lot of importance, and not only from an exam point of view, but from your further studies point of view as well. Agar if anybody, most of you will also be planning to go in the research area, तो वहाँ पे भी software testing को एक बहुत important point मान के they have considered it a very important subject, and further researches are being going on. ठीक है, so what we have in software testing, we have verification, validation. Well, these two topics are most कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन, है ना. इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि वेरिफिकेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है, व्हाट इज ऑल दिस. सो डोंट वरी, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी क्लियर. ठीक है, वी हैव वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, वी हैव एरर. ठीक है, एरर, फॉल्ट, बग, फेलियर. सो फ्रॉम दीज फोर टॉपिक्स ऑल्सो क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ठीक है, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, बिकॉज दे कैन गिव यू मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में. सो इसीलिए वी हैव टू पुट आवर फोकस over here as well. ठीक है, देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग. वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ गया. यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया आपका. ठीक है, यूनिट एंड इंटीग्रेशन, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिस पाथ टेस्टिंग, नॉट दीज टॉपिक्स. बेसिस पाथ टेस्टिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर, deriving test cases, these are not very much important, but still, since they have mentioned it, so we'll try to understand these topics as well.
ठीक है. सो देन वी हैव अल्फा बीटा टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. रिग्रेशन टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. परफॉर्मेंस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग. सो बिकॉज बिफोर, इफ यू सी ओवर हेयर, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग को मेंशन करा है. ठीक है. अब यहाँ पे देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग दैट आर नॉट मेंशन्ड. ठीक है. मतलब जैसे कि आप बोलोगे कि यूनिट इंटीग्रेशन है बट सिस्टम टेस्टिंग नहीं है यहाँ पे, है ना. देन यू विल से कि एक वैलिडेशन टेस्टिंग वो नहीं है यहाँ पे. ठीक है. सो वो मेंशन नहीं है यहाँ पे टॉपिक. द टॉपिक्स आर नॉट मेंशन इन दिस सिलेबस, बट दे आर आस्क्ड, है ना. मतलब कि दो दे हैव नॉट रिटन इट, बट स्टिल यू हैव टू कंसीडर दैट एंटायर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो भी है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग. सो अगर आप देखो एक ओवरव्यू लो स्लाइड्स का, सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एड एवरीथिंग पॉसिबल. ठीक है. जो भी हो सकता है. फंक्शनल टेस्टिंग देखो, फंक्शनल टेस्टिंग इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, है ना. कहीं भी मेंशन नहीं है फंक्शनल टेस्टिंग, बट यू नो इट वेरी वेल दैट फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम, है ना. सो इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर कि कुछ भी हमसे रहे ना. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले व्हाट इज टेस्टिंग. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि व्हाट इज टेस्टिंग. सो टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द एम ऑफ फाइंडिंग एरर्स. सो बेसिकली क्या होता है कि somebody has written a program. somebody से मेरा मतलब we can refer to a developer, right. A developer has written a program. Now what is the role of a tester? टेस्टर क्या करता है. टेस्टर बेसिकली डू व्हाट जनरली क्या होता है जब हम प्रोग्राम लिखते हैं. सो वी ट्राई, वी आर एम इज कि कोई एरर ना निकले, है ना. वेन एवर वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम, हमारा एम ये रहता है कि जस्ट रन हो जाए कोड, है ना. देयर इज नो एरर इन दिस कोड. बट व्हाट इज द एम ऑफ अ टेस्टर? एम ऑफ अ टेस्टर इज कि वट एवर एरर इज पॉसिबल, it is generated in this particular program, whatever program he is running. And if there is any error, if there is any error possible for this program, that error should be generated. The aim is to find the errors, है ना. मतलब कि सपोज कोई भी प्रोग्राम है ना. बेसिक कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है जनरली. सपोज ये आपका कोई प्रोग्राम है, ठीक है, एंड द प्रोग्राम इज टू फाइंड स्क्वायर. ठीक है. वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर्स. ठीक है. फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर्स. अब यहाँ पे लेट्स से व्हाट इज हैपनिंग इज कि लेट्स से टेस्टर है एक. ठीक है. दिस इज वन टेस्टर एंड दिस इज योर प्रोग्राम. यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे हुए हैं एंड दिस इज दी प्रोग्राम. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन इज, नाउ लेट्स सपोज दैट द इनपुट, ठीक है, दिस विल बी द इनपुट विल बी गिवन बाय द टेस्टर. ठीक है. सो नाउ लेट्स से दैट द टेस्टर गिव द इनपुट 2. ठीक है. So what will be the output generated? The output generated will be 4. Correct. Let's say the input given is 3. The output generated is 9. Correct. Let's say the input given is 10. So the output generated is 100. Correct. Okay. Now let's say the input given is 25. So the output generated is 625. Correct. ठीक है. सो यहां तक करेक्ट है ना. 625 ही होगा, 25 का स्क्वायर. ठीक है. सो यहां तक तो इट्स ओके. नाउ व्हाट यू विल थिंक इज की ओके, द प्रोग्राम इज करेक्ट एंड नाउ इट इज रनिंग करेक्टली, सो देयर इज नो एरर फॉर दिस गिवन प्रोग्राम. बट what is the work of tester? The aim or the work of tester is to find the errors. अब यहाँ पे कोई error तो आया नहीं है ना. So you must be thinking कि okay, this program is correct. But let's say now the input given is -4. ठीक है. अब the output that is generated, it say let's say -16. So this output is wrong. करेक्ट. अगर -4 है, अगर आप -4 का स्क्वायर करो, so the answer has to be 16. The answer cannot be negative of 16. So now abhi tak when we were taking positive numbers, the result was okay. So the program was okay. But since I got one false case, since जैसे ही मुझे एक false case मिला, the entire program becomes wrong and then this program will go again to developer. कि developer check this program again, for this input my output is coming wrong. ठीक है. So the
testing is very, you can say that developing a program, a project is a very difficult case. No, a tester has to develop all the particular test cases. अगर suppose being a tester आपने ये example नहीं दिया, so you will think कि okay, all the answers are coming correct, so this is correct. But अगर मान लो the client, ठीक है, the user, the now user is giving -400, let's say, and the result he is getting is minus only, so that means your program is wrong. तो यहाँ पे fault किसका हुआ? यहाँ fault हुआ tester का, because the tester was not able to correctly find all the errors. Developer tester पे डाल देगा, because developer will say that I developed the program, okay, there was certain fault in it, but what is the work of a tester? The fault finding is the work of tester. This is not my work. I have generated a program, and it will contain some errors. That finding error is work of tester. So that is why testing is very important. It is done with the aim of finding the errors. Okay, so this is what is written over here, that testing is the process of executing the program with the aim of finding errors. To make our program or software perform well, it should be error free. If testing is done successfully, it will remove all the errors from the software. Obviously जैसे ही -4 वाला error generate हुआ, so not developer will correct it, and then the error will be removed and the answer will be correctly given to us. So that is why if testing is done successfully, it will remove all the errors. Okay, this is the definition of testing. Now we have certain principles of testing. What are those principles of testing? First is all the tests should meet the customer requirements. ठीक है, अभी जो example I took, the last example that I took was, तो ये -4, the negative numbers, the finding square of negative number was done so that when a customer will use this, or when a customer will perform this, he or she should not be having any problem. To make a software working, testing should be done by a third party. मतलब yeah, they are saying that the tester should be a person who do not know anything about the code. ठीक है, मतलब क्या कि टेस्टर को बस ये पता है, टेस्टर नोज दैट दिस प्रोग्राम विल गिव द स्क्वायर ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अब टेस्टर जो है उसको नहीं पता कि व्हाट इज द कोड. ही विल सिंपली गिव द इनपुट्स एंड ही विल एक्सपेक्ट द आउटपुट्स, एंड इफ द आउटपुट्स विल बी मैच्ड विद द एक्चुअल आउटपुट्स, तो द प्रोग्राम इज करेक्ट. अगर कहीं पे भी एरर आई तो वो प्रोग्राम आपका गलत है. ठीक है, देन एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. व्हाट इज एग्जॉस्टिव टेस्टिंग? एनीवन, एनी आइडिया? एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का क्या मतलब है? क्या बोल रहे हैं वो? एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल एज वी नीड द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग. ठीक है, एज वी नीड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट. तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब होता है, इट मीन्स टेस्टिंग द एप्लीकेशन एज अ होल एंड कवरिंग एवरी पॉसिबल थिंग. ठीक है, मतलब what I am saying is that कि अभी मैंने जो आपको एग्जांपल लिया, that is finding the square, it was a very small program, है ना, it was a very small software you can say, but software is a very, मतलब the entire programs are very big. So exhaustive testing means that we are taking the entire program all together and then we are trying to find the errors, and that is not possible. Why? Because it is very time consuming, है ना, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो एंड यू हैव टू गिव अ लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स, सो दैट विल मेक द टेस्टर कंफ्यूज एज वेल. सो exhaustive testing, that is testing the program as a whole, is not possible. I hope this is clear. Exhaustive testing means testing the program as a whole, so it is not possible. Why? Because when we have a large amount of program, or when the program is very big, it becomes very difficult to deal with the values. All the tests to be conducted should be planned before implementing it. Similar, जैसे ये वाला केस था आपका finding the square वाला, यहाँ पे भी the tester should have मतलब पहले से उसके माइंड में होना चाहिए कि what all values I have to take what as input and what all values I have to expect as output. So all the tests to be conducted should be planned before implementing. It follows Pareto rule, very important, क्योंकि हो सकता है just seeing the pattern of the paper, this question is very important because they can ask any theory question. Pareto rule, that is 80/20 rule, which states that 80% of errors come from 20% of the program. ठीक है, मतलब जो आपका entire program है उसके 20% में से ही you can expect 80% of errors.
Then start testing with small parts and extend it to large part. That is what ये और ये वाला point, third point and sixth points are basically saying the same thing. Start testing with small parts. और हम बोल रहे हैं exhaustive testing, मतलब कि testing the entire program in a whole is not possible. So we are saying कि small part से, छोटे छोटे part से आप testing करना शुरू करो, फिर आप एक बड़े part पे पहुंचो. This is what they are saying. ठीक है. सो आई होप दिस बेसिक इज क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज टेस्टिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज देयर, कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं होती, ये ध्यान रखना. ठीक है. और परेटो रूल ध्यान रखना. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, नेक्स्ट वी हैव सॉफ्टवेयर वैलिडेशन. वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है? वैलिडेशन होता है कि वी आर ट्राइंग टू वैलिडेट समवन. मतलब वैलिडेट मतलब कि आपने जो किया है वो आप सही कर रहे हो. ठीक है. मतलब आप किसी को एक वैलिड वो दे रहे हो कि आप इंश्योर कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू इंश्योर समथिंग कि आप, मतलब इफ आई टॉक विद रिस्पेक्ट टू पीपल, सो यू आर गिविंग योर वैलिडेशन. मतलब आप एक दूसरे पर्सन को यू आर इंश्योरिंग दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इज राइट. ठीक है. So validation is the process of examining whether or not software satisfies the user requirement. ठीक है. So basically what we are validating the software, that whether the software is able to satisfy the user requirements or not. So validation deal करता है user requirements पे, है ना. वी आर ट्राइंग टू वैलिडेट कि जो सॉफ्टवेयर है वो सही से वर्क कर रहा है, जो उसको काम करना है कि नहीं. ठीक है. So validation is the process of examining whether or not the software satisfies the user requirements. It is carried out at the end of SDLC. So I hope you all know what is SDLC. SDLC is Software Development Life Cycle. तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो एंटायर लाइफ साइकिल है उसको हम SDLC बोलते हैं, राइट. जो पूरा प्रोसेस है. सो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन हमेशा एंड में कैरी आउट होता है. क्यों? बिकॉज जब आपका पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है बन के, देन वी ट्राई टू वैलिडेट द सॉफ्टवेयर कि वेदर द सॉफ्टवेयर वाज बिल्ट करेक्टली, दैट इट इज मीटिंग द यूजर रिक्वायरमेंट्स और नॉट. If the software matches the requirements for which it was made, it is validated. Validation ensures that the product under development is as per the user requirements. Validation answers the question, are we developing the product which attempts all that user need from this software. ठीक है. ये क्वेश्चन आता है जो बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि आर वी बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट राइट, ऐसा कुछ करके सुना है. एक क्वेश्चन सुना आपने. तो वैलिडेशन का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है, आई जस्ट राइट इट ओवर सो दैट आप क्लियर हो जाए. आर वी बिल्डिंग the right product. ये this is the question that we ask when we talk about in terms of validation, क्योंकि हम ये validate कर रहे हैं कि whether the product that we are trying to make, whether the software that we are trying to develop is basically satisfying the user requirement or not. So software validation is, are we building the right product. ठीक है. ये हो गया आपका वैलिडेशन, दैट इज इट डील्स ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट. सो आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट. देन वी हैव सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन. Verification is the process of confirming if the software is meeting the business requirements and is developed adhering to proper specifications and methodologies. So software verification deal करता है specifications में. ठीक है. So basically what is happening, it ensures the product being developed is according to design specifications. Verification answers the question, are we developing this product by firmly following all design specifications. So the question that is asked over here is, are we building the product right. So basically what is the difference between validation and verification? सबसे important चीज जो we have to keep in mind is,
अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, so what you will say? For validation you will say it is based on user requirements. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैलिडेशन जो है वो डील करता है यूजर रिक्वायरमेंट्स पे, एंड वेरिफिकेशन डील्स विद द स्पेसिफिकेशंस. इट कैन बी डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशंस. ठीक है. सेकंड वैलिडेशन में वी टॉक अबाउट कि आर वी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट. अब इसका क्या मतलब है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि सपोज दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल. बाय एग्जांपल वी से कि देयर इज अ कस्टमर ए. ठीक है, देयर इज अ यूजर ए एंड यूजर ए वांट्स अ सॉफ्टवेयर दैट विल गिव द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, है ना. आई टेक द सेम एग्जांपल, स्क्वायर ऑफ नंबर्स. ठीक है. अब नाउ लेट्स सपोज दिस इज अ डेवलपर एंड दिस डेवलपर इज क्रिएटिंग अ प्रोग्राम. ठीक है, नाउ ही क्रिएटेड वन प्रोग्राम. Now what will validation do? Validation will check कि क्या जो यूजर ने मांगा है दैट इज स्क्वायर ऑफ नंबर्स, क्या आपने वही जनरेट करके दिया है कि नहीं. लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं इनपुट दूं 2 तो आपका रिजल्ट आया 4. ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर इज 4, करेक्ट. नाउ इफ आई गिव इनपुट 3, अब रिजल्ट आ रहा है 6, so this is wrong. Input do 4, result आ रहा है 8, this is wrong. This means that the user asked for square of numbers और आपने जो बना दिया वो बना दिया addition of same numbers या addition of numbers. ठीक है. सो वैलिडेशन बेसिकली इज, वैलिडेशन सेज दैट कि वॉट एवर यूजर हैज आस्क्ड फॉर यू हैव टू प्रिपेयर द सेम थिंग. यू आर बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट और नॉट, मतलब कि जो यूजर ने आपसे एक्सपेक्ट किया है कि आप वही क्रिएट कर रहे हो या नहीं. सो आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट. ठीक है, राइट प्रोडक्ट. और सेकेंड क्या होता है, वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन बोलता है आर वी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट. मतलब कि क्या है कि इसमें आता है बेसिकली कि हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो सही से डिजाइन हो रहा है कि नहीं. मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, वो आप प्रोडक्ट सही से बना रहे हो या नहीं. यहाँ पे होता है कि क्या आप प्रोडक्ट सही बना रहे हो, क्या आप वही प्रोडक्ट बना रहे हो दैट इज रिक्वायर्ड बाय द यूजर. यहाँ पे ये कि आपने जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी डिजाइन है, क्या वो डिजाइन आपने वैसा बनाया है कि नहीं. So validation is are we building right product and verification is are we building the product right. I hope this difference is clear between the two, validation and verification. Validation मतलब कि क्या आप सही प्रोडक्ट बना रहे हो, वेरिफिकेशन इज क्या आप सही से प्रोडक्ट बना रहे हो. ठीक है. यहाँ पे हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें. सो आई होप that this is clear to everyone. Okay. Validation is are we building the right product and verification is are we building the product right. Verification concentrates on the design and system specifications. So basically यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें, design and system specifications. I hope this is clear to everyone. Both these points are clear. ठीक है. ये आपके क्या है, कॉजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट. अब द क्वेश्चन इज कि जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट हुआ क्यों, व्हाई देयर वाज अ डिफेक्ट. सो लेट्स से वी हैव अ डॉक्यूमेंट और वी हैव अ कोड और वी हैव अ सॉफ्टवेयर, वी हैव अ सिस्टम. ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वी कैन से डॉक्यूमेंट है हमारे पास या कोड है. सो उसमें एक एरर थी या देयर वाज अ मिस्टेक. ठीक है, क्या हुआ सबसे पहले कि एक आपने डॉक्यूमेंट लिया. ठीक है, लेट्स से देयर इज अ कोड, हमने कोड लिया. ठीक है, उस कोड में कोई एरर थी या मिस्टेक. ठीक. अब वो जब एक बड़े लेवल पे पहुंची, ठीक है, जब वो एक सॉफ्टवेयर में गई या कुछ हुआ तो वो बन गया फॉल्ट या बग या डिफेक्ट. और फिर जब हमने उसे रन किया तो वो बन गया फेलियर. सो द सिस्टम विल फेल टू डू व्हाट इट शुड डू. तो यहाँ पे बेसिकली दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि एरर और मिस्टेक सबसे छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो डेवलपर करता है. Okay, so error or mistakes are actual coding mistakes made by developers. In addition, there is a difference in output of software and desired output. मतलब actual output और desired output में difference आता है because of this error or mistake.
ठीक है। एरर इज अ ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूसेस एन इनकरेक्ट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एरर इज अ ह्यूमन एक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम एबल टू रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। So error is an action or error is a human action that produces an incorrect result, ठीक है। so ये आपका error और mistake हो गया, that is a human action, ठीक है। एंड इसमें क्या कह रहे हैं वो कि डेवलपर्स के थ्रू ये गलती होती है, ठीक है। डेवलपर्स बेसिकली मेक दिस एक्चुअल मिस्टेक्स, ठीक है, पहली चीज हो गई। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज बग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एरर और मिस्टेक के बाद क्या है, फॉल्ट, बग या डिफेक्ट। व्हाट इज अ बग नाउ? A bug is a result of coding error in the program which causes program to behave in an unintended or unanticipated manner, ठीक है। बग क्या है बेसिकली? बग एक ऐसा एक रिजल्ट है ऑफ एरर, ठीक है। बग इज अ रिजल्ट ऑफ एरर जिसकी वजह से प्रोग्राम इज नॉट एबल टू बिहेव इन अ वे इट इज सपोज टू बिहेव इट। अब इस वर्ड, इस लाइन को समझो, इट इज एन एविडेंस ऑफ फॉल्ट इन अ प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि बग अगर आपके प्रोग्राम में है, ठीक है, इफ योर सॉफ्टवेयर इज हैविंग अ बग, दिस मीन्स दैट योर सॉफ्टवेयर विल हैव सर्टेन फॉल्ट, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है? इट इज एन एविडेंस ऑफ फॉल्ट। मतलब जब हम एविडेंस, मतलब किसी चीज का प्रूफ है ना, एविडेंस मीन्स होता है कि इट इज अ प्रूफ ऑफ समथिंग, दिस इज एन एविडेंस ऑफ। ये हम जब हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्योरीज वो देखते हैं, क्राइम सीरीज देखते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ना एविडेंस क्या है इसका कि ये हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो दिस मीन्स दैट बग इस चीज का एविडेंस है कि फॉल्ट है आपके प्रोग्राम में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। बग इज बेसिकली एन एविडेंस कि आपका जो प्रोग्राम है वो फॉल्टी है। So bugs arise from mistakes and errors made by people in either a program source code or its design. Now what is defect or fault? A defect is a deviation from the requirements. A software defect is a condition in a software product which does not meet a software requirement or end user expectations. In other words, a defect is an error in coding or logic that causes a program to malfunction or to produce incorrect result. This could be hardware, software, network, performance, format or functionality. बहुत ईजी है। डिफेक्ट या फॉल्ट का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है इट इज नॉट एबल टू बिहेव इन सर्टेन वे, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन थी वो रिक्वायरमेंट से डेविएट हो गया आपका प्रोग्राम, दैट इज अ डिफेक्ट, डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स। लास्ट वी हैव अ फेलियर. Failure is deviation of software from its intended purpose. It is the inability of a system or a component to perform its required functions within specified performance requirements. Failure occurs when fault execute. So यहाँ पे अगर आप समझो वो क्या कह रहे हैं बेसिकली कि कोई भी प्रोग्राम में the smallest mistake is known as error, ठीक है। This is your human mistake, ठीक है। ह्यूमन मिस्टेक जो होती है, जो हम ह्यूमन से जो होती है, दैट इज योर एरर। एरर से जनरेट होता है क्या? बग, ठीक है। नाउ दिस प्रेजेंस ऑफ बग, ठीक है, अगर आपके उसमें एरर मतलब आपके प्रोग्राम में प्रेजेंस ऑफ बग इन प्रोग्राम, ठीक है, लीड्स टू फॉल्ट और डिफेक्ट, ठीक है। सो व्हाट इज फॉल्ट और डिफेक्ट? डेविएशन फ्रॉम द requirements. And when fault executes, मतलब कि अगर आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें उसमें फॉल्ट है तो क्या होता है? देन फेलियर अकर्स, ठीक है। तो सबसे छोटी चीज है एरर, एरर के बाद आता है बग, बग की वजह से होता है फॉल्ट और फॉल्ट की वजह से हो जाता है फेलियर। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि बग इज बेसिकली एन अनइंटेंडेड और अनएंटिसिपेटेड मैनर में आपका प्रोग्राम बिहेव करेगा। Fault is deviation from requirements and failure is when default executes or deviation of software from its intended purpose. So ये आपके points हो गए। If you see the यहाँ पे if you see
So we have covered what? We have covered verification and validation. Yes, then we have covered error, fault, bug and failure. तो ये हमारे टॉपिक्स ये वाले भी हो गए. Next we have unit and integration testing. So let's see अब इसमें क्या है. What we have next is यहाँ तक हमने कर लिया. Bug, defect, fault and then failure. Next we have types of software testing. Very 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 important. Very important. बहुत ज़्यादा important है ये. I just don't know how many time I have to repeat this, but this is very very important. So we have two types of software testing: static testing and dynamic testing. ठीक है. Static से क्या है? Review, walkthrough, inspection. ठीक है. Okay, let's give it a side. Static testing हो गया review, walkthrough and inspection. मेन जो काम शुरू होता है वो होता है डायनामिक टेस्टिंग. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डायनामिक टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. ठीक है. फंक्शनल टेस्टिंग में वी हैव व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स. व्हाइट बॉक्स में वी हैव यूनिट टेस्टिंग. ब्लैक बॉक्स में वी हैव इंटीग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनलिटी टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ठीक. फिर नॉन फंक्शन में वी हैव लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी, रिकवरी, यूजेबिलिटी, कुकीज. ठीक है. अब इसमें हमें क्या क्या ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ. फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, बेसिक, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, यूनिट जिसमें आपके ये चीजें भी होंगी. ठीक है. इंटीग्रेशन, फंक्शनैलिटी का थोड़ी बहुत, रिग्रेशन, सिस्टम, यूजर एक्सेप्टेंस. स्मोक सैंटी इतना नहीं पूछे, बट दे कैन ऑल्सो आस्क, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट फॉर नाउ लोड एंड स्ट्रेस, सिक्योरिटी, रिकवरी. एक इसमें आता है आपका, एक इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, बट एक चीज आती है परफॉर्मेंस. आई थिंक वो लोड एंड स्ट्रेस में आ जाती है ना, परफॉर्मेंस टेस्टिंग. सो ये है पूरा. ठीक है. सो इसमें वील सी वन बाय वन व्हाट इज स्टैटिक टेस्टिंग, व्हाट इज डायनामिक टेस्टिंग, व्हाट इज ऑल दीस थिंग्स, वील सी वन बाय वन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. स्टैटिक टेस्टिंग. अब स्टैटिक टेस्टिंग क्या होगी आपकी, इसमें आपके आते हैं रिव्यूज. स्टैटिक टेस्टिंग में आते हैं रिव्यूज या स्टैटिक एनालिसिस टूल्स. ठीक है. तो आपके इनफॉर्मल और फॉर्मल होते हैं, जैसे वॉक थ्रू, टेक्निकल रिव्यू, इंस्पेक्शन. तो क्या है ये, अगर हम इसी को यहाँ पे देखें, जस्ट गिव मी अ सेकंड. Static testing. ठीक है. सो स्टैटिक टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग. ठीक है. परफॉर्म्ड, आई राइट द डेफिनेशन दैट इज क्लियर टू यू. परफॉर्म्ड टू check defects, perform to check defects in the software without actually running the code. ठीक है. without actually executing the code. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, we are yeah. So what we are doing is we are basically checking the software. ठीक है. We are checking a defect, but we are not actually executing the code. Okay. So this is your software testing, static testing. ठीक है. डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक बेसिकली, डायनामिक टेस्टिंग इज दैट यू आर एग्जीक्यूटिंग द कोड टू फाइंड द डिफेक्ट. ठीक है. स्टैटिक टेस्टिंग होता है, इट इज परफॉर्म एट अ वेरी अर्ली स्टेज. वी परफॉर्म इट एट वेरी अर्ली स्टेज, जिससे कि वी आर एबल टू फाइंड कि बहुत अर्ली स्टेज में आपको, क्योंकि आप रिव्यू वॉक थ्रू कर रहे हो तो बहुत ही अर्ली स्टेज में आप ऑफिसली परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है. जिससे कि वी कैन फाइंड द सोर्स ऑफ एरर्स.
ठीक है, सोर्स ऑफ एरर हम फाइंड कर सकें, दैट इज व्हाई वी ट्राई टू परफॉर्म इट एट अ वेरी अर्ली स्टेज। एक आता है आपका रिव्यू, ठीक है, रिव्यू आपका हो गया वॉक थ्रू, इनफॉर्मल, टेक्निकल रिव्यू, पीयर इंस्पेक्शन, ठीक है। यहाँ आपका जो स्टैटिक एनालिसिस होता है उसमें आता है डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो, ठीक है। सो रिव्यू क्या है बेसिकली, इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज अ रिव्यू, review is a process or technique that is performed to find the potential defects। मैं देख रही हूँ इसकी डेफिनेशन तो मैंने कहीं एक्सप्लेन नहीं कर रखी है ना, ओके ठीक है। सो रिव्यू हो गया बेसिकली कि रिव्यू कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब यू आर ट्राइंग टू फाइंड द पोटेंशियल डिफेक्ट्स, क्या क्या पोटेंशियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे इनफॉर्मल का मतलब हो गया कि जो डॉक्यूमेंट जिसने बनाए हैं, ठीक है, जिसने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो लोगों को बता रहा है कि व्हाट ऑल कैन बी द पॉसिबल इफ डिफेक्ट्स, व्हाट ऑल कैन बी द पॉसिबल एरर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, वो हो गया आपका इनफॉर्मल। वॉक थ्रू बेसिकली क्या होता है, वॉक थ्रू ऐसे आपको पता है कि वी इट इज बेसिकली परफॉर्म बाय एक्सपीरियंस पर्सन और एक्सपर्ट टू चेक द डिफेक्ट्स so that there might not be problem further in the development or testing phase. So walkthrough basically is done by the experienced person. So I'll write it over here, experienced person, ठीक है, walk through हो गया आपका by an experienced person. Then we have technical review or peer review जिसको हम बोलते हैं। It means checking documents of one another, ठीक है, टेक्निकल रिव्यू या फिर इसको हम बोलते हैं peer review। So what does it says? It says checking the documents, checking one another's document। peer review से नाम को आपको समझ में आ रहा होगा, checking documents of each other। So basically we check one another's document so that किसी का भी कोई error है तो एक दूसरे को हम find करके बता सकें। Then inspection is basically verification of the document the higher authority like, ठीक है, so inspection हो गया verification of document जो higher authority के through होता है, verification of document, ठीक है। So we have two types, we have basically four types of reviews, that is static testing, informal, तो नॉर्मल आपका इनफॉर्मली आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो विदाउट एनी एक्चुअली, जस्ट यू आर जस्ट गिविंग दी कंटेंट टू दी ऑडियंस की क्या क्या पॉसिबल एरर्स और क्या क्या पॉसिबल आप की बग्स जनरेट हो सकते हैं। वॉक थ्रू इज डन बाय एन एक्सपीरियंस पर्सन जो बताता है कि या एक्सपर्ट जो बताता है कि व्हाट ऑल पॉसिबल एरर्स कैन अकर इन फ्यूचर। Technical review या peer review, it is done by the colleagues that they check the documents of each other and then they try to find the errors. Inspection is basically verification of documents done by the higher authorities. So ये आपकी हो गई static testing, ठीक है। Static testing is basically performed to check the defects without even actually executing the code। ठीक है, I hope कि ये clear हो गया होगा, यहाँ तक कोई doubt नहीं किसी को। Correct? Okay. नेक्स्ट लेट्स मूव टू टेस्टिंग लेवल्स। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, टेस्टिंग लेवल्स है, ठीक है। फर्स्ट इज योर यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट मतलब क्या है यहाँ पे कि वी हैव अ प्रोग्राम, ठीक है, एंड वी आर टेकिंग अ यूनिट ऑफ इट। हमने व्हाट वी डिड इज वी हैव डिवाइडेड द प्रोग्राम इनटू सर्टेन सब यूनिट्स और सब प्रोग्राम। ऐसा समझो कि एक प्रोग्राम था उसको आपने सब प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया, सब प्रोग्राम से आपके। So unit test is basically testing individual component, मतलब कि in this unit test you are basically checking this sub program 1, ठीक है, ये आपका सब प्रोग्राम 1 है, ये सब प्रोग्राम 2 है, सब प्रोग्राम 3, सब प्रोग्राम 4। So unit test is you are testing the individual component, ठीक है। यूनिट टेस्ट के बाद आता है इंटीग्रेशन टेस्ट। नाउ व्हाट यू डिड, यू मर्ज्ड सब प्रोग्राम 1 एंड सब प्रोग्राम 2, आपने इसको मर्ज किया एंड नाउ मतलब अब मर्ज करने के बाद आपने इन पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। सिस्टम टेस्ट इज नाउ यू आर टेस्टिंग द इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब अब आपने क्या किया, पहले इसको चेक किया और फिर इसको चेक किया, ठीक है। अब फिर आया एक्सेप्टेंस टेस्ट, यू आर टेस्टिंग द फाइनल सिस्टम। अब आपने पूरे सिस्टम को एज अ होल आपने चेक किया, दैट इज यू आर मूविंग फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर पार्ट्स, दैट इज योर टेस्टिंग लेवल्स।
तो टेस्टिंग लेवल्स हैं आपके 4 टेस्टिंग लेवल्स हैं, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट एंड देन वी हैव एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है वो एंड यूजर करते हैं, दिस इज आई होप यू ऑल नो, है ना। सिस्टम टेस्ट जो होता है वो आपका जो टेस्ट है वो करता है, बट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है वो एंड यूजर्स करते हैं। डेवलपर्स भी कभी कभी कर लेते हैं, वो भी 2 टाइप की टेस्टिंग होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो वो हम अभी आगे विल सी टू इट। Testing itself may be defined at various levels of SDLC. टेस्टिंग प्रोसेस रन्स पैरेलल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। टेस्टिंग प्रोसेस जो है वो पैरेलली चलती रहती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। बिफोर जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, अ स्टेज इज टेस्टेड, वैलिडेटेड एंड वेरीफाइड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि ये जो पॉइंट है, टेस्टिंग प्रोसेस रन्स पैरेलल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बिफोर जंपिंग ऑन टू वन स्टेज, द stage that is there is tested, validated and verified. Testing separately is done just to make sure there are no hidden bugs or issues left in the software. Software is tested on various levels. सबसे पहला आपका यूनिट टेस्टिंग। While coding, programmer performs some test on that unit of program to know if it is error free. Testing is performed under white box testing approach. मैं बताऊंगी white box क्या है। Unit testing helps developers decide that individual units of program are working as per requirement and are error free. क्या होता है बेसिकली, आपको ओवरव्यू दे देती हूँ मैं क्योंकि समझना पड़ेगा। वी हैव बेसिकली व्हाट इज अ व्हाइट बॉक्स। अगर आप देखो एक व्हाइट बॉक्स, अगर आपसे मैं पूछूं सिर्फ व्हाइट बॉक्स, व्हाट इज अ व्हाइट बॉक्स, तो आप क्या कहोगे, व्हाइट बॉक्स या फिर मैं उसको बोलूं ग्लास बॉक्स। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि देयर इज अ ग्लास बॉक्स, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एक बॉक्स है जो क्या है, ट्रांसपेरेंट इन नेचर, है ना। यस और नो, व्हाइट बॉक्स हो गया या ग्लास बॉक्स से आपको समझ में आ रहा है कि एक बॉक्स है जो एक क्या है, ट्रांसपेरेंट है नेचर में, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इफ आई से ब्लैक बॉक्स, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ब्लैक बॉक्स से आपको एक समझ में आ रहा है कि ये एक बॉक्स है ना, दिस इज अ बॉक्स दैट इज कंप्लीटली नॉट विजिबल टू अस, मतलब कि हमें नहीं पता कि इस बॉक्स में क्या है, ये पूरा ब्लैक है, ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज कि सपोज कोई इनपुट कोड है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कोड है, यहाँ पे आपके कोडिंग लाइंस हैं, ये आपकी कोड लाइंस हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस व्हाइट बॉक्स इज, जो भी कोडिंग हो रही है वो आपको विजिबल है, कोड इज विजिबल टू यू, यू कैन सी कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, यू कैन सी द इनसाइड कंटेंट ऑफ दिस बॉक्स। If this is your code, if suppose these are your code lines, so these code lines are visible to you, ठीक है। ब्लैक बॉक्स में क्या है कि कुछ भी, nothing is visible, ठीक है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि जब कोड लाइंस विजिबल है तो मतलब कि जो जो बेसिकली व्हाइट बॉक्स जो है, इट इज डन generally by the programmer because he is unable to understand the code. Obviously अगर मुझे कोड, सपोज मैं टेस्टर हूँ, ठीक है, आई एम अ टेस्टर एंड आई हैव नो आइडिया ऑफ कोड, मुझे नहीं पता कि कोड क्या है, कोड कैसे रन करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं, तो कोड दिखना और ना दिखना इज सिमिलर टू मी, यस और नो। इफ आई एम अ टेस्टर, इफ आई एम अ पर्सन हु हैज जीरो नॉलेज अबाउट कोडिंग, ठीक है, आई एम अ पर्सन एंड आई हैव नो नॉलेज ऑफ कोडिंग, सपोज आई एम फ्रॉम हिस्ट्री student, I'm a history student, I have no knowledge about Python, C++, so whether the code is visible to me or not, I cannot do anything about it, है ना। So my type of person can do black box testing because I am not aware about the code, I don't care about the code, but since I am a developer and I know what does the code means, so I can find the errors by looking at the code, है ना। सपोज मैंने इनपुट दिया, यहाँ से एक आउटपुट आया, बट आई कैन सी दी वर्किंग कि क्या वर्किंग हो रही है, सो फ्रॉम दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या एक प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। सो दिस इज योर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स में यू आर अवेयर अबाउट द कोड, यू कैन सी द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, बट ब्लैक बॉक्स में यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कोड, नीदर यू कैन सी द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं, यूनिट टेस्टिंग जो है आपकी, यूनिट टेस्टिंग is the programmer performs some test
on the unit of a program to know which error free. Testing is performed under white box testing approach. Why white box testing? Because programmer perform कर रहा है, programmer को definitely पता होगा कि कोड क्या है. ठीक है. Unit testing helps developers decide that individual units of program are working as per requirement and are error free. Second is integration testing. Even if the units of software are working fine individually, there is a need to find out if the units integrated together also work without errors. So I think this is clear कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या है कि हो सकता है, ठीक है, आपका सब प्रोग्राम 1 था, दिस वाज सब प्रोग्राम 1 एंड दिस वाज सब प्रोग्राम 2. ना अब इनको आपने एग्जीक्यूट किया, कोई एरर नहीं आई, बट जैसे ही आपने इन्हें मर्ज किया एक एरर जनरेट हो गई. So that is your integration testing. कि हो सकता है कि the units are separately working fine, but as soon as you merge them, there is a certain amount of error. So जैसे यहाँ पे, for example, argument passing या data updation. जब आप different units में करोगे तो कोई error नहीं आएगी, पर जब आप merge करोगे तो argument passing error generate करेगा. So this is your integration testing. ठीक है. Software engineering defines variety of strategies to execute integration testing. ठीक है. अब जो integration testing है आपकी, जो ये आपका है, when you are merging two units, ठीक है, integrating two units, तो उसके लिए कुछ strategies हैं जो mention की गई हैं. That is big bang approach, incremental approach, that is top down approach, bottom up approach या sandwich approach. So before coming to it, let's just quickly revise जो हमने पढ़ा है अभी तक. हमने पढ़ा है about your unit testing and all. ठीक है. So what we study was कि let's say that I have this module 1, then I have this module 2, then I have this module 3, and then I have this module 4. ठीक है. Now these modules are known as units. Unit. So इन पे जो टेस्टिंग होगी that is your unit testing. ठीक है. इन पे यूनिट टेस्टिंग होगी. जो प्रोग्रामर्स हैं they will perform the unit testing because they have the idea of the तो यूनिट टेस्टिंग जो है आपकी वो कैसी हो गई? यूनिट टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स, और ये कौन करता है? प्रोग्रामर. ठीक है. क्लियर. अब now what I'm doing is, now after performing this unit testing, what I did, I merged two components with each other. मैंने क्या किया? मैंने 1 और 3 को इंटीग्रेट कर दिया and I integrated 2 and 4. So now this becomes integrated and this also becomes integrated. Yes or no? है ना. Integrate means, and now यहाँ पे हो सकता है कि no error was generated, but after integration certain amount of error can be there. So जो integrated testing है उसके we have different types. ठीक है. मतलब इंटीग्रेट टेस्टिंग मतलब कि जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दो मॉड्यूल्स को, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं. एक है आपकी बिग बैंग अप्रोच, एक है टॉप डाउन, एक है बॉटम अप, और एक है सैंडविच. ठीक है. तो ये आपकी होगी. अब लेट्स सी व्हाट इज ऑल दिस अप्रोच. ठीक है. बिग बैंग टेस्टिंग क्या कह रहा है? बिग बैंग टेस्टिंग बेसिकली, Big Bang testing is an integration testing approach in which all the components or modules are integrated together at once and then tested as a unit. तो क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे? अभी हमने एग्जाम्पल देखा था ना, मॉड्यूल 1, then मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4. तो क्या बोल रहे हैं कि all these units they will be integrated into one unit. अब हमने क्या किया? इनको एक यूनिट में इंटीग्रेट कर दिया and now we will test this unit. ठीक है. So it is an integration testing approach in which all the components or modules are integrated together at once and then tested as a unit. This combined set of components is considered as an entity while testing.
If all the components in the unit are not completed, integration process will not execute. So इसकी advantage क्या है? It is convenient for small system, क्योंकि ठीक है 2 modules हैं, okay fine, but what happens when we have 100 modules? ठीक है, सो अगर इतना बड़ा है आपका प्रोग्राम, इसमें 100 मॉड्यूल्स हैं, उसको आप एक मर्ज एक उसको इंटीग्रेट करके रन करोगे, सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेक्टिक. सो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि फॉल्ट लोकलाइजेशन इज डिफिकल्ट. ऑब्वियसली आप सोचो आपके पास 4 मॉड्यूल्स थे एंड देन यू मर्ज ऑल 4. सपोज नाउ दिस इज द पार्ट वेयर एरर इज कमिंग. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू फाइंड दिस फॉल्ट कि कहाँ पे एरर हो रही है, because we have 4 modules. So we first I'll find this one, first I'll execute. अब सब merge हो गए, सब merge होने के बाद obviously there'll be a lot of amount of data that will be generated for you to check. So fault localization is very difficult. Since integration testing can commence only after all the modules are designed, testing time will have less time to execute. Obviously अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर all the components in the unit are not completed, integration process will not execute. So for testing this entire unit, I have to wait for all the modules to be completed. So इसीलिए since integration testing can commence only after all the modules are designed, testing team will have to wait and they will have less time of execution and testing phase. Since all modules are tested at once, high risk critical modules are not isolated and tested on priority. ठीक है, तो ये तो हो गया बिग बैंग. तो बेसिकली बिग बैंग टेस्टिंग ओनली कन्वीनियंट फॉर स्मॉल सिस्टम्स. जब हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम है तो वी विल नॉट गो फॉर बिग बैंग टेस्टिंग. इन दैट केस वी हैव इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बिग बैंग अप्रोच और इंक्रीमेंटल अप्रोच. सो बेसिकली फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग वी हैव 2 strategies. One is your big bang approach and another one is your incremental approach. So let's see what are these incremental testing. In the incremental testing approach, testing is done by integrating 2 or more modules that are logically related to each other and then tested for proper functioning of the application. Then the other related modules are integrated incrementally and the process continues until all the logically related modules are integrated and tested successfully. So यहाँ पे incremental testing में we are looking out for logically related modules. ठीक है, in incremental testing we will integrate only those modules that are logically related to each other. ठीक है, so first we will take 2 modules that are logically related to each other, उस पे हमने टेस्टिंग परफॉर्म की. then we will search for other modules that are logically related and then we will increment the number of modules. So incremental approach in turn is carried out by 2 different methods, that is bottom up and top down. Bottom up integration testing क्या होती है? नाम से समझ में आ रहा है कि bottom up integration testing is a strategy in which lower level modules are tested first. Obviously lower bottom up मतलब ऐसे, तो जो आपके lower level पे उन्हें आप पहले टेस्ट करोगे, फिर उसके ऊपर वाले लेवल पे है ना. These tested modules are then further used to facilitate the testing of higher level modules. The process continues until all the modules at top level are tested. Once the lower level modules are tested and integrated, the next level of modules are formed. So मैं बहुत deep में नहीं जा रही because बहुत easy to understand. I hope कि इसमें कोई problem नहीं आएगी bottom up integration में. Fault localization is easier. No time is wasted waiting for all the modules to be developed. Critical modules, that is at the top level of software architecture. Critical modules मतलब just generally your higher modules which control the flow of applications are tested last and may be prone to defect. ये इसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि जो सबसे हाई लेवल पे जो होते हैं these are your top critical modules. ठीक है, so critical modules में ही जो है ज्यादा चांसेस होते हैं कि एरर जनरेट हुआ होगा. so bottom up integration testing में वो सबसे लास्ट में जा रहे हैं एक तो हम वहाँ पे, ठीक है, और फिर हम उसको हमने बाकी सबसे इंटीग्रेट भी कर दिया. तो हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा डिफेक्ट आपको मिले. अब एक कंसेप्ट है आपका स्टब एंड ड्राइवर का. उससे पहले टॉप डाउन इंटीग्रेशन है, उसके बाद है. ठीक है, तो टॉप डाउन इंटीग्रेशन इज अ मेथड व्हिच इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेक्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम following the control flow of the system. Higher level modules are tested first, then lower level modules are tested and integrated in order to check the software functionality. Stubs are used for testing if some modules are not ready.
ठीक है। सो टॉप डाउन इंटीग्रेशन में हम एक चीज का यूज करते हैं, दैट इज ड्राइवर बेसिकली होता है स्टब ड्राइवर। स्टब और एक मिनट, अच्छा हाँ रह गया वो, हाँ एक मिनट, पहले स्टब्स एंड ड्राइवर ही आएगा, ठीक है। तो पहले अब यहाँ पे स्टब आ गया है कि ठीक है, मतलब स्टब का यूज करते हैं हम। अब क्या है स्टब, ये देख लेते हैं, ठीक है। स्टब्स एंड ड्राइवर्स आर डमी प्रोग्राम्स इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना। Stub and drivers are dummy programs in integration testing that is used to facilitate software testing activity. These programs act as substitutes for missing models in testing. तो क्या होता है कि जब हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर हम बॉटम अप जा रहे हैं, ठीक है, सपोज वी आर यूजिंग दीज टू, ठीक है, वी मर्ज दीज टू, उससे हमने मॉड्यूल 2 जनरेट किया, ठीक है। फिर 6 से हम 3 पे गए एंड 3 2 को मर्ज करके हमने मॉड्यूल 1 जनरेट किया। So suppose let's say that module 3 is not ready, ठीक है। In that case I will use driver, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्राइवर का यूज करूंगी, दैट इज अ डमी प्रोग्राम जो इसको फिल आउट कर देगा, इसको इसका सब्स्टिट्यूट है टाइप का, ठीक है। They do not implement the entire programming logic of the software module, but they simulate data communication with the calling module while testing. तो अगर मेरे पास module 3 नहीं है, तो instead of waiting for module 3, I can use this dummy program that will help me to communicate with the lower level and then I can move to the upper level. जब module 3 ready होगा, वहां पे I can substitute it back instead of this dummy program, ठीक है। सो जब भी कोई मॉड्यूल अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, whenever a module is not ready, in that particular case we can use these dummy programs. बॉटम अप के केस में उस डमी प्रोग्राम का नाम है ड्राइवर एंड टॉप डाउन के केस में उस डमी प्रोग्राम का नाम है स्टब, ठीक है। ये ध्यान रखना कि बॉटम अप में वी हैव दिस ड्राइवर एंड टॉप डाउन में वी हैव स्टब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली उन्होंने, stubs are used for testing if some modules are not ready. Advantage again, fault localization is easier, possibility to obtain an early prototype, critical modules are tested on priority, major design flaws can be found and fixed first. But disadvantage क्या है कि modules at lower level are tested inadequately and needs many steps. ये हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे modules ready ना हो, उनके लिए I have to use stubs, ठीक है। सो आई होप कि स्टब वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। स्टब एंड ड्राइवर का कंसेप्ट समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब व्हाट इज सैंडविच? Sandwich testing is a strategy in which top level modules are tested with lower level modules at the same time. Lower modules are integrated with top modules. So basically we are using bottom up and top down at the same time. That is your hybrid integration testing and it makes use of both stubs as well as drivers. तो आप stub का यूज भी कर रहे हो और आप drivers का यूज भी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिस्टम टेस्टिंग। अगर आप देखो यहाँ पे तो वी वर हैविंग 3 टाइप्स। यूनिट, यूनिट टेस्टिंग पढ़ ली। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में वी सॉ योर बिग बैंग अप्रोच एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिस्टम टेस्टिंग। तो सिर्फ सिस्टम टेस्टिंग में क्या कह रहे हैं वो, द सॉफ्टवेयर इज कंपाइल्ड एज प्रोडक्ट and then it is tested as a whole. This can be accomplished using one or more of the following tests. Functionality testing. Test all the functionalities of the software against the requirement. Performance testing. The test proves how efficient the software is. मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज नाम से क्लियर हो रहा होगा। फंक्शनलिटी टेस्टिंग मीन्स कि आप चेक कर रहे हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो भी रिक्वायरमेंट मेंशन थी, जो भी फंक्शनलिटी उसको परफॉर्म करनी थी, वो उस फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। मतलब कि इफ सपोज you were supposed to create a software that was used to find the square of numbers, तो क्या वो फंक्शनलिटी जो है उसकी, दैट इज फाइंडिंग द स्क्वायर, वो सही से फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। देन परफॉर्मेंस टेस्टिंग. This test proves how efficient the software is.
It tests the effectiveness and average time taken by software to do desired task. Performance testing is done by means of load testing and stress testing. तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग. तो यहाँ पे जो हमने लिखा था, वी कैन करेक्ट इट ओवर हेयर. यहाँ पे कि instead of writing it over here, I can write this like this कि स्ट्रेस टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग ही होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग. ठीक है, ये आती सिस्टम टेस्टिंग में है बट इट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा और थोड़ा सा टाइम लेके. Performance testing में क्या होगा? Performance testing is done by means of load testing and stress testing, where the software is put under high user and data load under various environment conditions. Fifth, security and probability. These tests are done when software is meant to work on various platforms and accessed by number of people. So security and portability मतलब कि जब आप the software is meant to work on various platforms and accessed by number of people. Next we have acceptance testing. That I told you, when the software is ready to hand over to the customer, it has to go through last phase of testing, that is your acceptance testing. This is important because even if the software matches all the user requirements and if user does not like the way it appears or work, it may be rejected. So एक है आपका alpha testing और एक है आपका beta testing, and this is very 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 important. सो क्या है ये अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग? द टीम ऑफ डेवलपर, ध्यान रखना ये चीज, अल्फा टेस्टिंग जो है इट इज डन बाय डेवलपर टीम. The team of developer themselves perform alpha testing by using the system as if it is being used in work environment. तो इसको हम यूज करते हैं वर्क एनवायरमेंट में. ठीक है, I'm writing these points so that it is easy for you to remember. They try to find out how user would react to some actions in software and how the system should respond to input. Then beta testing. After the software is tested internally, it is handed over to the users. तो यहाँ पे आपका आ गया यूजर या कस्टमर, और ये आपका होता है रियल एनवायरमेंट में. ठीक है, production only for testing purpose. This is not yet the delivered product. Developers expect that users at this stage will bring minute problems which were skipped to attend. ठीक है, तो बीटा टेस्टिंग बेसिकली यूजर्स कस्टमर होते हैं, बट वो जो यूजर्स होते हैं वो आपके जो होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर यूजर्स ही होते हैं जिनके पास ही कुछ ऐसा होता है ना. टेस्टिंग फेज आपने सुना होगा कि कुछ पर्टिकुलर यूजर्स को ही दिया गया था टू टेस्ट, कि कुछ यूजर ने यूज किया, फिर उन्होंने उनको प्रॉब्लम बताई, फिर उन्होंने उस प्रॉब्लम को सही किया. सो मार्केट में नहीं आया है अभी, बट इट इज प्रोवाइडेड टू सर्टेन यूजर्स सो दैट दे कैन चेक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या कमी है उनके एंड से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग: यूनिट टेस्टिंग डन बाय डेवलपर्स, इंटीग्रेशन टेस्टिंग डन बाय टेस्टर्स, सिस्टम टेस्टिंग डन बाय टेस्टर्स, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग डन बाय एंड यूजर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेवल्स ऑफ टेस्टिंग डन बाय डेवलपर्स, ये आपको ध्यान रखना है. यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर. इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन करता है? टेस्टर. सिस्टम टेस्टिंग टेस्टर्स. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड यूजर्स. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में दो होते हैं, एक आपका हो गया अल्फा टेस्टिंग. अल्फा टेस्टिंग डन बाय डेवलपर्स एंड दे डेवलपर्स देमसेल्व्स दे बिहेव एज कस्टमर्स, कि हम एज कस्टमर्स अगर हम ट्राई करें तो हमें क्या लगेगा. एंड बीटा टेस्टिंग हो गया आपकी रियल एनवायरमेंट. ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ तक कि we'll wind up till here. नेक्स्ट क्लास में we'll continue from this functional versus non-functional testing. हम देखेंगे different types of functional testing and all. Okay, that's it. Thank you everyone.